Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the continuation of properties of alkenes, and this is the property conjugation is the property of double bond compounds, and this is what we are going to start today. What is conjugation actually? Conjugation is derived from a Latin word, as you can see it is written here, that means to link together. In organic chemistry, this term is used to describe situation that occurs when pi system are linked together. Pi system का link together का मतलब क्या है कि we have a different arrangement by which we can arrange double bonds. For example, if you remember, we have seen different examples in which we had a long chain of double bonded compounds in which ये ज़रूरी नहीं होता कि we have double bond present at the first carbon or the third carbon or the fourth carbon. We can arrange them जैसे भी हमें कहेंगे, we can arrange them. Fine. So this is what is this? This is the property of double bond compounds, and this is known as conjugation. Okay, so let's we start with the proper explanation of this topic, that what I want to say and how we will explain it and how we are going to study it. For example, the structure is written here. We have three different kinds of double bonds arrangement, and the names are they are written here: conjugated, isolated, and one is cumulated. It is not written here, but वो एक cumulated भी एक type होती है. Here comes what is the meaning of 1,3 pentadiene. 1,3 pentadiene, let me draw the structure for you here. What 1,3 pentadiene, 1,3 pentadiene का structure क्या होगा? 1,3 pentadiene. 1,3 pentadiene आप इस तरह से बनाएंगे, 1 2 3 4 and this one is 5 and 1 and this one is 3 pentadiene, and I am not balancing here hydrogen, but you have to balance them like this, and this is the structure. For example, now look at this. What kind of structure we have? We have a one double bond present here and one double bond present here, and what is this? This one is single bond, this one is single bond. So what is this? It is alteration in sense of double bond, single bond, double bond, single bond. What is this? This is a conjugated property of a double bond. Fine. So if they are writing here, it's if they are saying कि ये आपके पास conjugated है, तो ये conjugated इसलिए है. This one is ये जो white part है, इसको हम consider कर लेते हैं double bond, और इसको हम single, या मर्ज़ी है, इसको single मान लीजिए. single double single double single double. So ये alteration हो रही है. This is known as conjugation. Now come 1,4 pentadiene. इसको क्या कह रहे हैं? इसको conjugated नहीं कह रहे हैं, इसको isolated system कह रहे हैं. इसका क्या मतलब है? 1,4 pentadiene का 1,4 pentadiene. 1,4 pentadiene means we will be having again 5 carbon membered ring like this, but we will be having double bond present in the first carbon and the 4 carbon. So if you check the method here is a double bond, this one is single, this one is single, this one is double. It is a example of isolated system. Isolated system, like there is no alteration, there is a double bond, then single, then there is a double bond, and so on. If we want to, like, it is not mandatory that we have to restrict ourselves on the pentane structure or pentene structure. We can prolong the chain also. So ये से कहते हैं isolated system. तो isolated system यहाँ पर क्या है? 1,4 pentadiene है. ओके जी. नेक्स्ट इज़ 1,3 cyclopentadiene. 1,3 cyclopentadiene. अब यह स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया हुआ है इन्होंने. इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए. अच्छा, यहाँ पर देखिए 1,3 cyclopentadiene. ये क्या हो रहा है? यहाँ आपके पास क्या है? ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक. यहाँ पर दिस वन इज़ सिंगल, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ तक. तो ये क्या हो रहा है? ये अगेन आपके पास यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं इस जगह से, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. सो यहाँ पर आपके पास इस चीज़ को आप क्या कहोगे? 1,3 साइक्लो है कि ऑल्ट्रेशन हो रही है ना, ये अगेन कॉन्जुगेटेड पार्ट है. और फिर आपके पास क्या है? 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन. 1,3 साइक्लो. अब अच्छा, 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पर 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन के अंदर स्टार्ट में यहाँ कॉन्जुगेशन शो हो रही है. हम देखेंगे कि 1 पे है 1. अच्छा, हमारी मर्ज़ी होती है हमने यहाँ से नंबरिंग करनी है, यहाँ से हम नंबरिंग साइक्लिक फॉर्म में भी नंबरिंग हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होता है. तो ये आपके पास क्या हो रहा है? 1 2 3. अच्छा, मैं इसको सही से ज़रा कर देती हूँ ताकि ये नज़र आए आप लोगों को. देखें, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है लेफ़्ट साइड से, और लेफ़्ट साइड से अगेन यहाँ से स्टार्ट किया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल. तो अगेन एक ऑल्ट्रेशन आ रही है यहाँ तक,
ठीक है। तो ये क्या है, इसको इन्होंने अगेन इंक्लूड किया हुआ है कॉन्जुगेटेड पार्ट में। उसके बाद आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन के अंदर, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये आपके पास आ रहा है, सही है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है। अब क्या होना चाहिए था, अगर इसको हम उस सिस्टम में ले गए, 2 सिंगल एक साथ आ गए। इफ़ यू रिमेंबर, हमने पीछे एक ओपन चेन स्ट्रक्चर किया था जिसके अंदर हमने पेंटाडाइन का स्ट्रक्चर, आप लोग ये काम कीजिएगा, आप इन सारे स्ट्रक्चर्स को एक साथ बनाते रहिएगा कॉपी पे, ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी हो। ये अगेन आइसोलेटेड की टाइप है, क्यों, क्योंकि बीच में 2 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, शुरू में 2 पहले डबल है, फिर लास्ट में डबल है, बीच में 2 सिंगल है। अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके सामने, बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके सामने कुछ इस तरह से है। ऑल्टरेशन डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बन रहे हैं। तो जब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉन्जुगेटेड पार्ट कहते हैं। तो अगेन ये क्या आ रहा है आपके पास, बेंजीन रिंग भी कॉन्जुगेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब आ रहा है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म आप लोग फेमिलियर हैं इस टॉपिक से कि व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज़ अ फिनोमेना इन विच molecular formula remain same and structural formula gets different. This is the definition actually. अब आ जाइए यहाँ पर आपके सामने जो लिखा हुआ है कि ये same molecular formula but different chemical structure. Chemical compound that have identical molecular formula but different properties and arrangement of atom in the molecules are called isomers and the phenomena is called isomerism. ये इसकी explanation है, मैं slides read नहीं करूँगी, उन्होंने यहाँ पर आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बता दिया है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि क्या मतलब होता है आइसो का और क्या मतलब होता है मर का। हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। ये बेसिक डेफिनेशन है, पेपर में इसकी डेफिनेशन आती है। 1 मार्क का आएगा तो जस्ट डिफाइन कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आए तो फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो कि मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको। नाउ हेयर कम्स 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, वी हैव स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड वी हैव स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फर्स्टली वी विल डिस्कस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ इट। Structural isomerism is commonly referred as a constitutional. This is you can say another name for structural isomers. This one, ठीक है, ओके। तो कहते हैं कि इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ एटम। हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसकी एटम्स को अरेंज डिफरेंट तरीके से करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसका नाम बदल जाएगा चीज़ का। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि आपके पास फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन्स हैं। साइक्लोहेक्सेन्स का और अल्कीन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, CnH2n, लेकिन स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है। तो वो किस में आएगा, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आएगा, ठीक है। कौन कौन, साइक्लो अल्केन्स और अल्कीन्स, सिंपल जनरल फार्मूलाज आर सेम। तो जब हम उनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। सो इट इज़ ऑफ 5 टाइप्स। सो हम लोग जब 5 टाइप्स पढ़ेंगे हम तब देखेंगे। फ़िलहाल अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द सेकंड टाइप, एंड दैट्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हेयर कम्स द डेफिनेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, दिस इज़ द मेन थिंग, सेम नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स बट डिफरेंट इन द ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन स्पेस। एटम्स इन स्पेस मतलब स्पेस के अंदर इनकी ओरिएंटेशन किस तरह से डिफरेंट होती है कि 3D डायमेंशनल इनकी स्ट्रक्चर है। अगर तो कोई चीज़ इस तरह से अरेंज हुई हुई है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे अरेंज हुई है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँगी तो सपोज़ कीजिए कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसको मैं कह दूँ कि ये कुछ है एक दूसरे के साथ, ये 120 डिग्री के एंगल पर अरेंज्ड हैं। कोई भी आपके पास कार्बन है उसके साथ सपोज़ कर लें, चलें हाइड्रोजन ही सपोज़ कर लें कि हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं, तो ये आपके पास 120 डिग्री के एंगल पे हैं। अगर मैं इस हाइड्रोजन को, जो ये लगा हुआ है, इस हाइड्रोजन को हल्का सा इस साइड पे कर दूं तो क्या ये 120 डिग्री का एंगल रहेगा? द आंसर इज़ नो। नाउ दिस एंगल विल बी चेंज। सपोज कीजिए दिस एंगल इज़ नाउ 119, सो this is again a stereo, this is stereo isomerism. The 3-dimensional structure is changed now, the angle is changed now, and do you know how I can change it? Just 1 degree. I just rotated this hydrogen from this side to this side, just a 1 degree, and not only 1 degree, I can rotate it like into पॉइंट्स ऑल्सो। 119 हो सकता है, मैंने 119.5 पे इसको रोटेट किया हुआ। अगेन इट इज़ अ न्यू आइसोमर। सो कैन यू इमेजिन हाउ मैनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स वी कैन फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट। सही है, जैसे जैसे आप उसको चेंज करते जाओगे, उस प्रोडक्ट की ज़रा सी डायरेक्शन चेंज करोगे, डायमेंशन चेंज करोगे, तो उसका स्टीरियो आइसोमर क्या हो जाएगा, डिफरेंट होता चला जाएगा।
This is how stereoisomerism occurs, and this is how we explain it. Then we have two types of stereoisomers, geometrical isomerism and optical isomerism. This is the type of stereoisomers. Let's we discuss it. फर्स्ट वन, बिफोर डिस्कसिंग दैट वन, हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ अ कायरल कार्बन, एंड दिस इज़ व्हाट वी इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस आउट इन एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. व्हाट इज़ दिस एक्चुअली? Number one, mirror images that is superimposable. For example, take the example of your left hand and right hand. If you see their mirror image, for example, अगर अपने हाथ को बिल्कुल शीशे के सामने रख के देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि दे बोथ आर सेम, बट एक्चुअली आपका जो राइट हैंड है वो मिरर में आपको क्या आ रहा होता है नज़र? लेफ्ट हैंड. ठीक है, सो दे सुपर इम्पोजिबल. लाइक इफ़ यू पुट योर राइट हैंड ऑन द मिरर, सो व्हाट यू विल सी लेफ्ट हैंड ऑन द मिरर, जो मिरर के अंदर आपको नज़र आएगा. सो दिस इज़ नॉट सुपर इम्पोजिबल. ये एक दूसरे इम्पोजिबल का होता है कि एक दूसरे के ऊपर चीज़ फिक्स बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर आए. जैसे थंब है तो थंब अगर राइट हैंड का है तो राइट हैंड का ही थंब आए. तो यहाँ पर ये जो आपके सामने उन्होंने डायग्राम दी हुई है ना आपको, अगर आप अपने हाथों को इस तरह से रख के देखोगे, सुपर इम्पोज करोगे, तो इस तरह से आपके सामने डायग्राम शो होगी. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबल. फाइन. तो ये कह रहे हैं कि सम मॉलिक्यूल्स आर लाइक हैंड, लेफ्ट एंड राइट हैंड्स मिरर इमेजेस, बट दे आर नॉन आइडेंटिकल और सुपर इम्पोजिबल. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आ रहा है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक. उसके बाद आ रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है हमारे पास? डेफिनेशन ही एक्सप्लेन करी है. एन इमेजनरी प्लेन पासिंग, मतलब उसको कोई इमेजनरी प्लेन है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करो तो वो टू इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड हो जाए. ठीक है, वो मिरर इमेज कह रहे हैं कि इट इज़ डिवाइड दैट वन हाफ इज़ द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा. यहाँ उन्होंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है ए कायरल और कायरल की. वो यहाँ समझ में नहीं आएगी, वो आगे समझ में आएगी, वो आपको पता लग जाएगा. चलो मैं यहीं बता देती हूँ. कायरल एंड ए कायरल का मसला क्या होता है. कायरल एंड ए, देखें, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4. अगर तो यहाँ 4 साइड पर सेम ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए हों या 2 भी सेम हो, जैसे कि यहाँ पर कार्बन के यहाँ 2 क्या लगे हुए हैं, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, अगर तो सेम लगे हुए हों तो वो ए कायरल की एग्जांपल है. और अगर ये चारों, कौन चारों? ये चारों जो आपके पास कार्बन के साथ, सॉरी जी, कार्बन के साथ ये लगी हुई है चीज़, कार्बन के चारों साइड डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए हैं. यहाँ ए लगा है, यहाँ बी लगा हुआ है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, कोई भी एक्स वाई जी, अगर चारों डिफरेंट हो तो वो कायरल कार्बन होता है. ठीक है, तो ये है सिमेट्रिकल प्लेन के. नॉन सिमेट्रिकल प्लेन के अंदर क्या होगा, जब आप उसको इक्वल हाफ में यूँ डिवाइड करोगे तो आपको दोनों साइड सेम ही इमेज नज़र आएगी ना, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों साइड सेम चीज़ लगी हुई है तो वो सेम इमेज फॉर्म करेंगे. बट हेयर क्या होगा, एक साइड मिथाइल है, इधर देखिए एक साइड मिथाइल है, एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नॉन सिमेट्रिकल होगा, यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं मिलेगा. अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आ रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री. व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? एक्चुअली पॉइंट्स सो दैट पॉइंट्स सिचुएटेड दैट आइडेंटिकल कंपोनेंट आर लोकेटेड टू अपोजिट साइड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट अलॉन्ग द एक्सिस पासिंग थ्रू इट. नाउ यहाँ कह लें सिंपल वर्ड्स में, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ये है कि आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है. अगर हम इसको यहाँ पर इस वाली इमेज को अगर आप देखते हो तो ये देखें, यहाँ पर आपको ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री. दिस इज़ द सेंटर ऑफ सिमेट्री. जो चीज़ आपको यहाँ लग रही हुई नज़र आ रही है वो चीज़ ये है, ये वाला. ठीक है, और ये इसका सामने नज़र आ रहा है ये चीज़, और ग्रीन के सामने आपको ग्रीन, दूसरी साइड पर आपको ग्रीन वहाँ नज़र आ रहा है. ठीक है, तो ये आपके सामने कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री आ पॉइंट सिचुएटेड दैट आइडेंटिकल कंपोनेंट्स आर लोकेटेड ऑन अपोजिट. आपको मतलब मिरर इमेज नज़र आ रही है लेकिन सामने आमने एक ही चीज़ दिख रही है कि जो इधर आपको नज़र आ रही है वो दूर वहाँ पर अगर करीब है तो इस साइड से आपको दूर दिख रही है, लेकिन उनकी जो शक्लें हैं वो सेम नज़र आ रही हैं दोनों साइड से. अच्छा, कायरल सेंटर क्या होता है? कायरलिटी क्या है? एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर दैट कायरल कार्बन आर दोज कार्बन, कायरलिटी इज़ द प्रॉपर्टी हैज़ नो इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. इनके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता. वाई? बिकॉज ऑल साइड्स आर डिफरेंट.
तो जब साइड्स ही डिफरेंट होंगी तो प्लेन कैसे, सिमेट्री कैसे निकलेगी इनकी, नहीं होगी ना। किसी भी तरह से काटोगे तो इधर चीज़ें अलग जाएंगी, इधर चीज़ें अलग जाएंगी, तो वो सिमेट्री नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने उन्होंने मिरर इमेजेस, जैसे आपके हैंड्स हैं, हम लोगों ने कहा है कि क्योंकि हैंड्स की भी डायरेक्शंस अलग अलग, हैंड्स की क्या शेप है, हैंड्स के ऊपर फिंगर्स हैं, नीचे आपकी पाम है, तो कोई वो थोड़ी है इक्वल हाफ्स थोड़ी हैं, इक्वल हाफ्स तो होंगे किसी बॉक्स के या किसी टेबल का ऊपर वाला जो टेबल का होती है चीज़, वो हो गई, ऐसी चीज़ें होती हैं। फुटबॉल है, उसको आप इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपका हैंड है, आपके फुट्स हैं, ये कोई इक्वल हाफ्स में डिवाइड होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको स्लाइड भी पढ़ देती हूँ। स्लाइड पे लिखा हुआ है कि नो मैटर हाउ यू टर्न इट, इट विल नेवर बी द सेम एज इट्स मिरर इमेज। ऑन कॉन्ट्रेरी इट हैज़ एसिमेट्रिक एक कायरल मॉलिक्यूल। अच्छा, एक कायरल मॉलिक्यूल है आइडेंटिकल, उल्टा बोलते हैं ज़रा यहाँ पर, एक कायरल का आइडेंटिकल होता है एंड सुपर इम्पोजिबल इमेजेस होती हैं, दे आर सिमेट्रिक। अच्छा, यहाँ देखिए ये आ रहे हैं आपके पास एक आरएल, फुटबॉल के ऊपर फुटबॉल रखोगे तो आपको सेम ही नज़र आएगी। और ये आपके सामने आ रहा है। फिर ग्लासेस हैं, ग्लासेस की एग्जांपल कह रहे हैं कि मिरर इमेज में आपको क्या पता लग रहा है ग्लास की कौन सी शेप है, सामने रखोगे तो आपको सारी साइड से वो सेम ही दिखता है ग्लास, सही है। सो वो आपके एक आरएल आ रहे हैं। अब आ रहे हैं कार्बन बेस्ड कार्बन एटम। अब यहाँ पर मैं ये पढ़ूँगी नहीं, मैं आपको सिंपल डायरेक्ट समझाऊँगी। दिस इज़ कायरल। Why? Because this carbon is bonded here with chlorine, here with bromine, here with hydrogen and here with methyl. Okay, अगर ये समझ में आ गया है, ये देखिए, आपको इसको देखें, इन दो को देखें, यहाँ देखिए ये क्या है, दिस इज़ हाइड्रोजन, दिस इज़ हाइड्रोजन, दिस इज़ ब्रोमीन, दिस इज़ मिथाइल। चारों डिफरेंट हैं? द आंसर इज़ नो, चारों डिफरेंट नहीं है। 2 आर सेम एंड 2 आर डिफरेंट। सो इज़ दिस कायरल? सो आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट कायरल, इट इज़ ए कायरल। All 4 should be changed. Now come here, this one carbon is bonded with this 1 2 3 4. Is this chiral? Yes, this is chiral, ठीक है। देखें ये हो गया। और लास्ट वन, इस पे देखिए, इस पे नज़र डालिए ज़रा। Is this chiral? One carbon is bond with hydrogen with methyl and this one is oxygen. All 4 sides are same. The answer is no, all 4 are not same. Oh sorry, all 4 are not different. This one is hydrogen, this is methyl and this is oxygen. 4 must be different and here one double bond is formed with the oxygen. So this is again a chiral example. Fine, ये है, ये इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी? एक्चुअली इट इज़ ability to rotate plane polarized light. And now question arises, what is plane polarized light? So plane polarized light is जो सिंगल प्लेन से गुजरे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लाइट हमारे पास आती है वो नॉन पोलराइज, जो यहाँ पर अगर हम एक काम करें कि हम किसी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर मैं कोई काम करूँ और मैं लाइट, कोई बल्ब है, सपोज़ कीजिए दिस इज़ बल्ब विच इज़ थोड़ा सा ख़राब हो गया है, बल्ब है, येलो कलर ले लेते हैं, दिस इज़ बल्ब। ओके, इसको मैं किसी बॉक्स में बंद करूं और उस बॉक्स में मैं हल्का सा छोटा सा सुराख कर दूं, तो और मैं इस बल्ब को ऑन कर दूं तो लाइट उस बल्ब में से जिस तरह से गुजरेगी वो ऐसे निकलेगी। दिस सही है। प्लेन पोलराइज लाइट को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, जो एक प्लेन से बिल्कुल एक सिंगल बीम ऑफ लाइट जो निकलती है वो प्लेन पोलराइज लाइट होती है। और यहाँ पर देखिए, certain organic compounds when plane polarized light in a path of plane polarized light, it rotate the plane polarized light through a certain angles. ये तो सबसे पहले तो आप प्लेन पोलराइज लाइट देख लीजिए कि प्लेन पोलराइज लाइट इन दोनों में से कौन सी होगी। मैं नीचे नहीं दिखा रही हूँ, आप लोग खुद गैस कीजिए एंड होपफुली यू आर गेसिंग इट राइट, दिस वन, ठीक है। दिस इज़ प्लेन पोलराइज लाइट। अब क्या कह रहे हैं कि लाइट दैट हैज़ बीन पास थ्रू अ निकल प्रिज्म और अदर पोलराइजिंग मीडियम सो दैट ऑल ऑफ द वाइब्रेशन आर इन सेम प्लेन। ये थोड़ा सा उन्होंने टेक्निकल टर्म में बात की है, लेकिन जो मैंने आपको समझाया था उस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा दिमाग इसको समझने में आसानी रहेगी। इट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट थ्रू अ सर्टेन एंगल, दैट्स इट। और कौन करता है? इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? एक्चुअली द कायरल वन, chiral carbon, which are compounds which are chiral in nature, which have all 4 different functional groups attached with it. They will turn the plane polarized light into left side or a right side. ये होगा, ठीक है। सबसे पहले तो पोलैरिमीटर का कॉन्सेप्ट देख लें कि एज आई टोल्ड यू दिस इज़ द बल्ब, यहाँ से बहुत सारी रोशनी निकल रही है, बीच में वी आर जस्ट पुटिंग एनी फिल्टर only allows through a light vibrating in one direction.
ठीक है, सुराख किया है हमने। नाउ दिस प्लेन पोलराइज लाइट पास थ्रू अ सैम्पल, इन सैम्पल इज इट इज दिस सैम्पल कंटेन्स, सैम्पल यहाँ पर कौन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट मे बी एनी वन, इट मे बी कायरल कार्बन, इट मे बी नॉन कायरल कार्बन, ये कायरल भी हो सकता है। इफ़ सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स कि कायरल अगर होगा तो इट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। एंड सपोज़ करें कि है, हमने जो इसके अंदर ऑर्गेनिक ये जो कंपाउंड डाला हुआ है यहाँ पर, ये वाला, ये कायरल है और ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट साइड पे, ये देखें, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इस पार्ट का मतलब ये है कि ये यहाँ पर लाइट को या तो राइट साइड पे टिल्ट करवा देगा या लाइट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवा देगा। कौन, दिस कार्बन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर तो हो गया, एनालाइजिंग फिल्टर इज़ टर्न सो दैट लाइट रीचेस अ मैक्सिमम, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज़ मेजर्ड। अब हम यहाँ से डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मेजर करते हैं कि हमारी लाइट की डायरेक्शन क्या है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ में आई है। अगर तो ये कार्बन इस लाइट को राइट साइड पे मूव करवा दे तो उसको हम नाम देते हैं, इसका नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, टर्न टू द राइट डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड टर्न if it is turned to the left to this side, if it is turned to the left to this side, so this is levorotatory, this is the name. Now comes the examples, optical isomers. अच्छा, it seems bit difficult ये examples, लेकिन आपको यहाँ पर जो चीज़ याद रखने की है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनके स्ट्रक्चर्स हैं, वो याद रख लें, बाकी कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगी। जो चीज़ मैं समझा रही हूँ वो याद रखें बस। सी, this is the structure of lactic acid. What is lactic acid? Lactic acid is actually, lactic acid is present in the milk actually. This is carbon and it is all 4 carbons are different. So first of all, is this a chiral carbon? Yes, this is a chiral carbon. Will it turns, will it rotate the plane polarized lights? The answer is yes, it will. Now होता क्या है, this lactic acid can rotate plane polarized light in both directions, in levorotatory type and in dextrorotatory type. If it rotate light into positive side or into a clockwise side, you will say कि it is a D-lactic acid. And if, ये देखिए स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लीजिए स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिफरेंस है। एंड इफ़ दिस chiral molecule turns light into, या उसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट हो जाए, यहाँ देखिए हाइड्रोक्सिल वॉज ऑन राइट साइड, हेयर हाइड्रोक्सिल इज़ ऑन अ लेफ़्ट साइड, दिस इज़ व्हाट आइसोमर्स। ठीक है, ये आइसोमर्स बन रहे हैं आपके पास, सिर्फ इतनी सी मिरर इमेज कह लें कि इट्स काइंड ऑफ मिरर इमेज। तो ये आपके पास फॉर्म हो रही है जो कि सुपर इम्पोसिबल नहीं है। ठीक है, सो यहाँ अगर ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा तो काउंटर क्लॉकवाइज कहेंगे, और ये आपके पास क्या हो रहा है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स बन रहे हैं। अगर हम इनको स्पेस में देखेंगे तो इनकी शेप्स इस तरह से नज़र आएंगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, वो एक डेफिनेशन आ रही है, वो डेफिनेशन आप लोग याद रख लीजिएगा कि ऑन द मिरर इमेज ऑफ अदर सच नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज फॉर्म्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर, जिनके आप सुपर इम्पोजिबल नहीं कर सकते, जैसे हैंड्स की एग्जांपल हमने दी थी। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनैंशियोमर्स। इसको हम जो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होती है उसको हम इनैंशियोमर्स भी कहते हैं। साथ में यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है वही वाली बात की जो मैंने अभी आपको पीछे समझाई थी, वही लैक्टिक एसिड की एग्जांपल्स ये लोग दे रहे हैं, उसी चीज़ को ये अगेन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से इसको हम लैक्टिक एसिड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको बता सकते हैं। अगेन उन्होंने यही चीज़ यहाँ पर देखी है, इन्होंने बताई भी है। ये चीज़ है आपके पास कि यहाँ पर देखिए मिरर रखा हुआ है सामने, और यहाँ पर मिथाइल यहाँ पर, यहाँ मिथाइल यहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ है। वरना होना क्या चाहिए था, हाइड्रोजन को इस जगह होना चाहिए था अगर इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होती, बट नो, जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है वहाँ हाइड्रोजन है। तो इट मीन्स के अगेन दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, और अगर आपके पास पॉजिटिव साइड पर आ रही है ये चीज़, अगर इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब यही है ना आपके पास कि पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो वही आपके पास लैक्टिक और लैक्टिक एसिड की एग्जांपल्स के अंदर अगर मैं आपको इसको देख लें, यहाँ पर इट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द दिस वन, इट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज़ कॉल्ड लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी को हम लीवो के लिए नेगेटिव साइन भी लिखते हैं और नेगेटिव साइन लेफ़्ट साइड के लिए लिखते हैं। यहाँ जो डबल नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, एक लीवो को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक डायरेक्शन ऑफ द लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो लेफ़्ट साइड पे हो रही है, ठीक है। और इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव की साइड की जो बात कर रहे हैं वो भी यही है। अच्छा, लैक्टिक एसिड कहते हैं कि अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव शो कर रहा है तो इट डजंट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, दिस इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव और इट इज़ एन इक्विमोलर मिक्सचर। अगर हम इन दोनों का लेंगे ना, किसका, लीवो कंपाउंड का और जो डेक्स्ट्रो कंपाउंड है उनका एक ही मोलर मिक्सचर, मतलब इक्वल क्वांटिटीज़ दोनों के लोगे तो वो इस तरह से बिहेव करेंगी, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेंगी। तो हमें जो अमाउंट लेनी होती है वो थोड़ी डिफरेंट लेनी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने बिल्कुल सेम वही आ रही है लेकिन नाम चेंज है। इट इज़ अ टार्टैरिक एसिड। टार्टैरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, बेटा ये स्ट्रक्चर है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसका कोई हल नहीं है कि टार्टैरिक एसिड क्या होता है। टार्टैरिक एसिड 2 कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स होते हैं और 2 इसके अंदर हाइड्रोक्सिल होते हैं और 2 कार्बन है, ठीक है। टोटल आपके पास 4 कार्बन हैं। ये स्ट्रक्चर है टार्टैरिक एसिड का। टार्टैरिक एसिड भी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और मीज़ो एसिड भी होता है। मीज़ो वही के इक्विमोलर स्ट्रक्चर्स लिए लोगे तो ना डेक्स्ट्रो होगा ना लीवो होगा, बल्कि वो कोई नहीं देगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा वो। इसकी अगर आप एक्सप्लेनेशन देखते हो, इसको अगर आप पढ़ते हो तो सेम वही एक्सप्लेनेशन है, स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ डिफरेंस है। इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट साइड, इट्स कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लैक्टिक एसिड इज़ द मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव लैक्टिक एसिड एंड वाई, जस्ट लाइक लैक्टिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं टार्टैरिक एसिड, इट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इनटू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इट इज़ कॉल्ड लीवो रोटेटरी। और पॉजिटिव नेगेटिव टार्टैरिक एसिड आपके सामने यही बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्या होते हैं इन क्वेश्चंस को पढ़िए, एक्सप्लेन कीजिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।